Aptas Ayurveda. Reach Ayurveda to each. Charaka for Children. A first ever national level Ayurveda contest on short term school health project. On behalf of Charaka Jayanti 2025. Organized by Aptas Ayurveda Trust. Supported and guided by National Commission for Indian System of Medicine. Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth. Prize for the contest is sponsored by Dr. Giridhar Kaje, renowned Ayurveda physician, Prashanti Ayurvedic Center, state-of-the-art specialty Ayurveda hospital with 21 branches in Bengaluru, Karnataka. Sponsored by Ashtavaidyan Thaikattu Mos, Vaidyaratnam Aushadhashala, Thrissur, Kerala. In the tranquil mountains of Mandi district stands Abhilashi University, a campus where the silence of nature blends with the pursuit of knowledge. The project commenced with a formal inauguration led by the Vice Chancellor, Professor H.K. Chaudhary. In his address, he shared words of encouragement, guiding and inspiring every member of the team as they embarked on this important initiative. Vice Principal Dr. Rahul Shandalya of the Abhilashi Ayurvedic College and Research Institute addressed the gathering with clarity and depth. He outlined the three pillars of the project: Purva Karma, Pradhana Karma, and Paschat Karma, explaining how each phase was designed to guide the work from preparation to execution and finally reflection. These are the student volunteers of Charaka project, young, dedicated, and ready to take Ayurveda into the community. Their passion and sincerity formed the true backbone of the entire initiative. The baseline survey formed a crucial part of the project, carried out across three schools: Chal Public School, GSS Chachiyot, and GSS Chal Chowk. आपके एज ग्रुप क्या है? कितने साल के हो सारे? करोगे कॉपरेट सारे? जोर से बोलोगे? तो सबसे पहले मैं तो अपना नाम और एज बता दो। एवरेज आधे 12 और आधे 13 के तो आपको बता देता हूँ। पहले तो आप लोग समझ गए अपना टॉपिक, ठीक है? आप लोगों का हेल्थ कैंप है। डॉक्टर प्रिंसिपल सर ने बोला है कि हमारे बच्चों को हेल्दी रहे, इसलिए हम लोग आपके लिए हेल्थ कैंप करते हैं, ठीक है? तो अभी आप लोग दीदी को अपना सब नाम और एज नोट करो, ठीक है? At GSS Chachiyot,
Volunteers engaged closely with students from classes 6, 7, and 9 through simple conversations, asking their names, ages, and what they already understood about Ayurveda. The team gathered essential insights. These interactions helped map the children's existing knowledge and created a clear starting point for the educational journey that followed. At GSS Chachiyod, the baseline survey grew more detailed and insightful. The volunteers worked together to understand the children's everyday habits, health patterns, and lifestyle choices. They began by asking simple but revealing questions. Who drinks milk regularly? Who consumes ghee, a traditional source of nourishment deeply valued in Ayurveda? Students were also asked about their bathing routine, whether they bathed before eating or after meals, an important indicator of daily discipline and personal hygiene. The volunteers then explored each child's dietary pattern. How many meals do they eat in a day? Are their meals timely and consistent or irregular and skipped? To understand cognitive well-being, students were asked about the memory and concentration levels, how well they focus in class, how quickly they remember lessons, and whether they feel mentally active or easily tired. The team also looked into general health. Who falls sick often? Do any students suffer from recurring issues like headaches, cold, stomach discomforts, or weakness? They further asked if anyone had specific or diagnosed health conditions that needed attention. Firstly, an important part of the conversation revolved around screen habits. How much time students spent on mobile phones, televisions, or computer, and whether this affected their sleep, studies, or daily routines. Through these detailed interactions, the volunteers gained a clear picture of each student's nutritional habits, health challenges, and lifestyle behaviors. Crucial information that guided the next steps of the project. In the next phase of the project, questionnaires were distributed across all the three schools: Jail Public School, GSS Chachiyot, and GSS Chailchowk. On 28 August, during the first visit to Jail Public School, students of 7th, 8th, 9th received a specially designed Dincharya-based questionnaire aimed at understanding their daily lifestyle pattern. The questionnaire explored essential aspects of their routine. At what time do they wake up each morning? Do they rise naturally or do they depend on an alarm? How much water do they drink throughout the day? What is the regularity of their bowel movements and urination? Students were also asked about their bathing habits, whether they follow a fixed routine and maintain daily cleanliness. These detailed responses provided valuable insights into the children's daily rhythms, helping map their lifestyles in relation to Ayurvedic principles. On 30th August, the volunteers returned to GSS Chachiyot for the next step of the baseline assessment. The same Dincharya-based questionnaire focused on daily routines, dietary habits, and lifestyle practices was distributed to students of classes 9, 6, and 7. Volunteers described why wake-up time matters in Ayurveda, how water intake affects digestion, and why recognizing
Hunger cues is important before eating. They guide their students throughout the topics like ball and urine regularity, bathing habits, abhyanga, and the role of dahi, milk, and ghee in balanced nourishment. Even concepts like junk food consumption and exercise was simplified so that children could reflect honestly on their daily lives. This detailed explanation helped students fill out the questionnaire with clarity, making the data more accurate and meaningful for the project. और क्या जबरदस्ती वॉशरूम गए हो, जैसे वॉशरूम के लिए आपके दोस्त जा रहे तो आप भी जा रहे हो, फिर वहाँ पे On the same day, a second team of volunteers reached GSS Jal Chowk, ensuring that the project activity ran simultaneously across multiple schools. Here, they conducted interactive session with students from classes 7, 8, and 9. The discussion opened with simple introductions, but soon expanded into deeper conversations about the students' daily routine, what time they woke up, how they prepared for school, and whether they followed any healthy habits at home. Volunteers asked about their food choices, the amount of water they drank, and how often they consumed milk, ghee, or homemade meals compared to packed or junk foods. The children also shared how often they exercised, whether they practiced yoga, and the kind of physical activities they enjoyed in the school. The session explored the basic hygiene practices, bathing patterns, cleanliness, and small daily habits that influence overall health. इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्स्ट आहार विधि विशेष आयतन। तो नाम तो बहुत बोरिंग सा लग रहा होगा, है ना, कि कोई इंग्लिश में लंबा सा नाम। पहले अब इसको ऐसे डिकोड करते हैं क्या मतलब है। फर्स्ट का मतलब क्या होता है? आहार से क्या खाना, और विधि कैसे खड़े हुए बोल, आप बताओ मतलब एक प्रोसीजर है ना। और विशेष आयतन यहाँ पे इसका मतलब है कि जो फैक्टर्स है तो मतलब डिटरमाइन करते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली मतलब है कि 8 रूल्स है जो खाने के, जो हमें फॉलो करते हैं, जो मतलब हमें हेल्दी बनाएंगे, मतलब हमें हमारी बीमारी, हमें कोई बीमारी ना हो। प्रकृति से क्या समझते हो आप लोग? मतलब कुछ भी जो भी आप समझते हो, कोई बताओ, आप बताओ। मतलब नेचर क्या? हाँ, मतलब बिल्कुल सही बोल रहा, नेचर ही है। पर हम यहाँ पे पेड़ पौधों की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल वेरी गुड, मतलब अच्छा है। हम यहाँ बात करें नेचर ऑफ फूड की, मतलब कि खाने में क्या नेचर होती है। खाने 3 टाइम कौन खाता है? 4 टाइम कौन खाता है? 4 टाइम भी खाते हैं। ये 3 टाइम वाले लोग हैं वो सेम टाइम पे खाना खाते हैं, है ना। तो उनको सुबह भी सेम टाइम पे भूख लगती होगी, और दोपहर को भी और रात को भी, है ना। और फिर यदि वो वॉशरूम से जाते होंगे, जब वो खाना, जब वो सुबह उठते हैं तो थोड़े टाइम बाद जिनको भूख लगने लग जाती है अपने ब्रेकफास्ट से पहले, तो थोड़ा बहुत खाना है ना। और फिर लंच पे भी सेम टाइम पे भूख लगती है, फिर डिनर पे भी सेम टाइम पे। ये लोग तो सही क्वांटिटी में खाना खा रहे हैं। या फिर जैसे दाल के एग्जाम्पल देते हैं, या फिर कोई बीमार हो तो एकदम हल्का हल्का खाना खाना चाहिए, है ना। अब खाने के बाद नेक्स्ट आता है कि खाना बनाने का तरीका। तो हमें खाना खाना है, और हमें ये भी देखना है कि हम खाना कैसे बना रहे हैं और उनमें क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं। तो वो मतलब सेकेंड इम्पोर्टेंट रूल है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग कि हमें देखना है कि खाना बनाने का तरीका उतना इम्पोर्टेंट है। और जो खाना बनाते हैं वो प्रोसीजर का
हाँ मतलब ऐसा माना जाता है कि वो बोनस खाने में आते हैं, है ना। प्रकृति तो आपको समझ आ गई ना आप लोगों को, ठीक है मैडम। तो प्रकृति और करण आप लोगों को थोड़ा समझ आया, उनका मतलब क्या होगा, क्या मतलब है सहयोग का, मतलब ऐसे कुछ हिंदी में तो पढ़ा होगा आपने, सहयोग, ये सहयोग की है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है इसका मतलब, ठीक है। कॉम्बिनेशन से समझ रहे हो, जोड़ना। कोई बताएगा देश से क्या समझते हो, जहाँ हम रहते हैं, जो जगह है, जो प्लेस है। तो आर्यभट्ट ने बोला है कि जो जगह है, वहाँ के जैसे वेदर हो गया, मौसम हो गया, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पानी, उसका इफेक्ट हमारे खाने में और हमारी बॉडी में पड़ता है। तो आर्यभट्ट ने 3 टाइप्स के देश बताए हैं। एक है जंगल, आनो और साधारण। जंगल का मतलब हुआ ड्राई, मतलब सूखी जगह, जहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो राजस्थान हो गया, सूखी जगह है। आनो क्या होगा, उसका ऑपोजिट ये होगा, जहाँ बारिश बहुत होती है, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं। और साधारण नाम से आपको पता चलेगा, बीच का ना ज़्यादा गीला होगा ना ज़्यादा सूखा होगा। तो अब जैसे हम हिमाचल में रह रहे हैं ना, अब पहाड़ों में जैसे ठंड ज़्यादा होती है ना, तो हमें कैसे खाना खाना चाहिए, गर्म खाना चाहिए। अब जो राजस्थान के लोग हैं वो ठंडा, जैसे छाछ होती है, जैसे ठंडे होते हैं। तो यही बोला है आयुर्वेद में कि जो देश है उसके अकॉर्डिंग हमें अपना खाना कंज्यूम करना है। तो इसे पता चलेगा हम सच गए। आप बता दो क्या, हाँ, जब हमें फिर से भूख लगे, ठीक है, जब हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि जो अनडाइजेस्टेड खाना है, जो खाना पचा नहीं है, उसकी वजह से ही बहुत सी बीमारियां होती हैं। तो यही है उपयोग संस्था के बारे में। तो हमें जो भी 8 पॉइंट्स जो बताए हैं, इन सबको फॉलो करना जरूरी होता है ताकि आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकें। हमारा जो टॉपिक है वो है आहार विधि खाना, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिक डाइटरी गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो आहार कैसे लेना है, मतलब आहार को लेने की एक गाइडलाइन होती है कि आपको कैसे आहार लेना है, तो उसके बारे में ही हम बताएंगे। और जैसे तत्व आहार, मतलब अच्छा खाना खाओगे तो क्या होगा, अच्छा मन होगा, ठीक है। तो सिर्फ खाना आपकी फिजिकल हेल्थ को ही अफेक्ट नहीं करता है, आपकी मेंटल हेल्थ को भी वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। आप चिड़चिड़े हो, क्या आपको गुस्सा आ रहा है, तो ये आप जो खाना खा रहे हो उसके बेस पे डिसाइड हो रहा है कि आप कैसा खाना खा रहे हो, ठीक है। तो उसके मतलब आपकी मेंटल हेल्थ भी वैसी होगी, समझ आ गया। और जो ठीक है, क्या आपको कैसा खाना लेना है, लेना है, और कैसा लेना है, वेरी गुड, ठीक है। आपको पहले का जो खाना है उसको पहले डाइजेस्ट होने देना है, फिर उसके बाद ही आप अगला खाना खाना है, ठीक है। बीमारी, ठीक है। उसके बाद घर वाले बोल रहे हैं तेज तेज नहीं खाना है, क्या होता है जब तुम तेज तेज खाते हो, कुछ होता है ना, वो ऐसा होता है कि तुम्हारे अंदर में 2 पाइप होती है, एक खाने के लिए होती है और एक खाने के लिए होती है ना, एक फूड पाइप होती है और एक होती है फीड पाइप। जब तुम जल्दी जल्दी खाते हो तो क्या होता है, खाना ना तुम्हारी फीड पाइप में जा सकता है, उससे क्या तुम्हें खांसी आती है, फिर जब गले में कुछ बनता है ना, तो तब क्या हुआ जाए रिफ्लेक्स की, ताकि जो तुम्हारे गया है कोई खाना फंस जाए गले में वो निकल जाए। तो इसीलिए तुम्हें बोलते हैं कि तुमने तेल से नहीं खाना है, ज़्यादा तेल से नहीं खाना है। बताओ, वेरी गुड। खाते खाते उठना नहीं, मस्ती में खाना, बात करते हुए खाना, ठंडा खाने का और मतलब कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखना, ओके। जितनी भूख लगे उतना खाना, ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो एक बार सारे बोल दो कैसा खाना खाना है, गर्म खाने की ठंडा खाना है, और खाने में क्या साथ में खाना है, और कितना खाना खाना है, और बातें करते हुए खाना चाहिए, कितनी स्पीड
आहार विधि विधान, ठीक है। तो जो आहार विधि विधान है इसका मतलब क्या होता है? आहार पता क्या होता है? आहार क्या होता है? फूड ही होता है, ठीक बोलो, फूड होता है। और विधि पता क्या होता है? विधि क्रिया, क्रिया। अच्छा, विधि का मतलब वही होता है प्रोसेस, क्रिया। क्रिया को प्रोसेस बोलते हैं ना, तो विधि का मतलब प्रोसेस, ठीक है। तो विधान, विधान का मतलब पता होता है? विधान पता क्या होता है? विधान का मतलब जिसको पता कुछ भी गलत बोलो, कुछ नहीं बोलो। विधान का मतलब है, विधान का मतलब है उसको करने की पूरी प्रोसेस, वो जो पूरी प्रोसेस है उसको विधान बोलेंगे, ठीक है। अच्छे खाने खाने से हमारा शरीर और मन दोनों अच्छा रहता है। गंदा खाना खाएंगे, बेकार खाना खाएंगे, पिज्जा मोमो चाउमीन खाएंगे, वो क्या होगा? बर्गर खाएंगे। अच्छा खाना की गंदा खाना है वो, ठीक है। तो पहला पॉइंट है उष्ण आहार, मतलब कि गर्म खाना, हमें गर्म खाना खाना चाहिए। गर्म खाना खाना चाहिए मतलब हमें, देखो ना आपने गर्म और ठंडा खाना दोनों खाया होगा, आपको अच्छा क्या लगता है? गर्म खाना लगता है या ठंडा खाना? ठीक है। तो सभी को गर्म खाना अच्छा लगता है, इसका ये मतलब हुआ ना। ठंडा खाना नहीं होता अच्छा नहीं लगता है, स्वाद नहीं होता उसमें, टेस्टी नहीं होता है, ठीक है। तो हमें गर्म खाना क्यों खाना चाहिए? सबसे पहले ये स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए गर्म खाना टेस्टी लगता है। और ना आए थे हमारी जो पेट के अंदर जो आग है, तो उसके अंदर आप ठंडा खाना खा लो, वो क्या होगा? बुझ जाएगी वो। और बुझने से पता, जब तुम्हारी आग, तुम्हारी डाइजेशन कम हो जाएगी तो क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा, भूख कम हो जाएगी, है ना, तबीयत खराब हो जाएगी, है ना, तबीयत खराब, बीमारी का घर बन जाएगा शरीर, तुमको बीमारी होने शुरू हो जाएगी अगर तुम्हारी आग कम होगी तो। और जितनी भी बीमारी होती है ना आयुर्वेद में, पता क्या कहा गया? जितनी भी बीमारी है वो सब बीमारी का रीजन पता क्या है? कारण पता क्या है? अग्नि। अगर वो अग्नि जरा से भी कम हुई ना, तो आप जो खाना खाओगे पचेगा नहीं, खाना पचेगा नहीं तो वो खाना शरीर में लगेगा नहीं, शरीर में नहीं लगेगा तो बीमारी होगी वो, है ना, बीमारी उत्पन्न होगी उससे आपको। तो सबसे फर्स्ट था उष्ण आहार, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा, खाना खाने से पहले जगह को साफ करते हैं, झाड़ू से फिर बैठते हैं, वो किस लिए करते हैं? ताकि हाइजीन मेंटेन रहे, बीमारियां ना फैले। क्योंकि अगर गंदगी में खाओगे, गंदी स्मेल होगी, आपको खाने का मन करेगा, आपका मन भी नहीं लगेगा खाना खाने में, ठीक है। और खाना मन नहीं लगेगा तो फिर बचेगा भी नहीं, आप कितने खा लो। ऐसा होता होगा आपके साथ कि आपको मन नहीं है खाने का, पर जबरदस्ती खाना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता, बेहतर नहीं है। तो आपको करना क्या है, जो भी जिस भी जगह पे आप बैठ के खाते हो, टेबल प्रोजेक्ट से, मतलब पहले भी राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी से आए हैं। और बेसिकली जो हमारा, सबसे पहले थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि हमारा ये 3 महीने का प्रोजेक्ट है। तो जो अभी हमें लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, तो बेसिकली जो हम पहले मतलब असेसमेंट जो हमने की थी कि कुछ बच्चों का वेट, मतलब सबका हमने वेट लिया था, तो कुछ बच्चे अंडर वेट थे, तो उसके हिसाब से हमने टॉपिक्स डिसाइड किए कि जो मतलब सब बच्चों को हम दे सकते हैं और वो काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेंगे। एनर्जी के अलावा आप बताओ लास्ट में खाना क्यों खाते हैं? क्या होता है खाना खा के? चलो कोई भी बता दो। न्यूट्रिशन मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है ना खाना खा के। आप बताओ। जोर से थोड़ा। हमें खाना खाने से कई विटामिन मिलते हैं। हाँ, विटामिन। ओके, ठीक है। कोई लड़की? आप बता दो लास्ट। वेरी गुड। और तो उष्ण आहार से आप क्या समझ रहे हो? कोई बता सकता है मेरे को? ये तो मतलब नॉर्थ उष्ण संस्कृत पढ़ते हो आप लोग? संस्कृत कब से, मतलब 6th क्लास लगते हैं ना आपको? काल से आप क्या समझ रहे हो? लड़कियों से हाँ, समय मतलब टाइम, ठीक है। तो काल का मतलब होता है टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग आपको खाना खाना चाहिए। अब इसमें भी 2 टाइप्स आती है काल की, जिसमें अब काल की भी 2
टाइप्स हैं, ठीक है। एक है आवस्थिक काल, मतलब अवस्था के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे जो सिचुएशन है। अब आप जब बीमार पड़ते हो या जब हेल्दी होते हो तो आप अलग खाना खाओगे कि सेम खाओगे? अलग खाओगे ना। जो भी हम गलत करें वो क्या है? आहार, ठीक है। और हमें कैसा खाना खाना चाहिए? गरम, ठीक है। और हमें घी कितना लेना चाहिए खाने में? 1 चम्मच, ठीक है। और हमें क्या खाना खाते हुए बातें करनी चाहिए? नहीं। कैसे खाना खाना चाहिए? और क्या मछली और दूध को ऐसे नहीं? तुमने ब्रेकफास्ट में घी खाया है और दूध पिया है या मेरा आदित्य को कुछ फील हुआ को फॉलो करना, ठीक है। अब हमने चाय ये ले लिया पर फिर भी खाना इनको घी दूध मक्खन, ठीक है। बाद में अच्छा ही होगा वो, ठीक है ना। सारे खा लेना। क्या तुम्हारा वेट बढ़ा है? तुम्हें लगा किसका बढ़ा है वेट? जैसे मैं पहले पतली थी, उससे वेट भी बढ़ा मेरा और बहुत से फायदे हुए इससे मेरे को। बहुत अच्छी लगी है। मैंने सब कुछ खाया, बड़ा कितने का लिया तुम्हें? अब कितना हुआ? तो मेरा भी वेट बढ़ा। मेरा पहले 41 था, अब मेरा 44 हो गया और इससे अब मेरी रूटीन बन गई। और क्लास में मैं लेक्चर वगैरह दिया था ना, करते हो फॉलो? करते हो कुछ Good afternoon, dear students and faculty members. I, on behalf of Child Public School, Child Chowk, extend my heartfelt thanks to the student of BMS Department, Adilashi University, District Mandi, Himachal Pradesh, from first year to the final year for visiting our school today on 26th of November 2025. Your interactive awareness sessions under the theme Charka for Students was highly valuable for our students of classes 7 to 9. Through your efforts, our children learn about number 1, the importance of developing healthy daily habits. Number 2, understanding and adapting to seasonal changes. Number 3, cultivating moral values and good conduct, and many other meaningful aspects of holistic living. Your dedication, clarity of explanation, and warm interaction truly inspired our students. Such collaborative initiatives help young learners build a strong foundations of health, discipline, and character, which is essential in today's fast-moving world. We sincerely appreciate your time, efforts, and enthusiasm. Child Public School feels honored to host you, and we look forward to more such enriching programs in the future. Thank you once again, and we wish you all BMS students great success in their academic journey and professional life. Warm regards, Rajesh Soil, Principal, Child Public School, Child Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. Thank you very much.
तो आज हम लोग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चचियोट में आए हैं और आज हमारा चरक फॉर चिल्ड्रन का असेसमेंट डे है, जब हमने इनको बुकलेट दी थी 15 दिन पहले और आज 15 दिन बाद हम असेस करने आए। तो अब हम इन बच्चों से पूछेंगे कि इनको हमारे प्रोग्राम से क्या क्या फायदा हुआ। तो आपका नाम क्या है? क्रिश। तो क्रिश को क्या फायदा हुआ? मैंने खाना खाया, खाने में घी डाला तो मुझे बहुत अच्छा स्वादिष्ट लगा और मैंने और खाना खाया। ठीक है। आदित्य। आदित्य को क्या फायदे हुए? मेरी शक्ति बढ़ी। ठीक है। कार्तिक। कार्तिक को क्या फायदे हुए? वजन बढ़ा और जब मैं खेलता हूँ मैं थकता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। दीक्षित? मैं टीवी देख के खाना खाता था, अब नहीं खाता। तो मुझे इस प्रोजेक्ट के बाद ऐसा लगा कि हेल्दी कैसे रहना। वेरी गुड। सबका नाम? रिया। रिया को क्या फायदे हुए? पहले मैं जंक फूड खाती, अब मैं कम खाती हूँ। ठीक है। कशिश, मेरी शरीर की सारी थकान कम हो गई। ठीक है। लतिका, मैंने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं जंक फूड खाना छोड़ दिया। ठीक है, वेरी गुड। आपका नाम? संजना। मैं पहले खाना खाते समय टीवी देखती थी, अब नहीं देखती हूँ। ठीक है। मेरा नाम कुसुमलता है। मेरे को पता चला कि मालिश करने के क्या फायदे होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। एक बार अपने लिए तालियां बजाओ सारे। तो हमने कुछ चीज़ समझाई थी, को समझ में आई थी? घी दूध आपने खाया? कभी कभी खाया? मालिश वगैरह करी? नहीं करी? कोई बात नहीं। पहले आपका वेट कितना है? चलो अब इनका वेट चेक करो। लगे 15 किलो वेट बढ़ क्या था? मोटा वाला था। दोबारा खड़े हो गए। हेलो नेक्स्ट। ये जो आपने लिखा है टिक लगाया, खाया था सच में? मालिश की थी? चलो ठीक है, आपका वेट खड़े हो। 29। इस लड़के का वेट पहले था 28.5 और इसका होगा 29, आधा किलो। रिया आपने जो हमने क्वेश्चन खाया तो बातें आपने फॉलो की हो? घी वगैरह खाया सच में? उस टाइम आपको पता था वेट कितना था? आए थे मोबाइल देख के खाना खाया है ना? मालिश की है पक्का? कहाँ पैरों की किस जगह? सिर में की थी ना, और पैर में और यहाँ पे। मक्खन खाया रात को डिनर में? सच में? मालिश नहीं की? टीवी देख के भी नहीं खाया खाना? वेरी गुड। उस टाइम आपका वेट कितना था? 42। खड़े 33.5 3.5। चरक फॉर चिल्ड्रन एक 3 माह का कार्यक्रम जो नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के माध्यम से हमारे अभिलाषी विश्वविद्यालय के अभिलाषी आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान में किया गया। यहाँ
3 माह का ये जो कार्यक्रम था, इसमें हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज के बच्चों ने इस क्षेत्र के इर्द गिर्द के विद्यालयों 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को आयुर्वेद के महत्व से अवगत करवाया। चरक संहिता में एक संस्कृत का श्लोक दर्ज है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना ही सर्वोपरि है। और आयुर्वेद जो हमारी एक परंपरा है, चरक परंपरा से हम भली भांति अवगत हैं। पूरा विश्व आज आयुर्वेद की पद्धति से प्रेरित हो रहा है और इसमें भारतवर्ष विश्व गुरु है। जितना भी स्वास्थ्य संबंधी, चाहे एलोपैथी है या दूसरे कोई क्षेत्र उभर कर सामने आए हैं, जो आधुनिकता मिली है, वो आयुर्वेद ही उसका आधार है। हम यहाँ हिमालय क्षेत्र में अभिलाषी विश्वविद्यालय के अंतर्गत अभिलाषी आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत ये कार्यक्रम, जो चरक फॉर चिल्ड्रन, एक नया विचार, अभिनव विचार जो नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन सिस्टम मेडिसिन ने किया, प्रायोजित किया, उनके हम बहुत धन्यवादी हैं। उनका हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसे एक इनोवेटिव आइडिया को वो लेकर आए जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे, वो आयुर्वेद से प्रेरित होंगे, उसके महत्व को जानेंगे। जो हमारे औषधीय पौधे हैं और उनकी महत्ता है, उसको जानेंगे। हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत करके 3 माह लगातार कई प्रोफॉर्मा उन बच्चों से भरवाए। उनको आयुर्वेद से किस तरह से हमारा पोषण हो सकता है, हम स्वस्थ रह सकते हैं, स्वस्थ को स्वस्थ कैसे रखना है, उसके लिए उन्होंने प्रेरित किया, बच्चों को अवगत कराया। और उनकी ही सरल भाषा में हमारे बच्चों ने स्कूल के बच्चों को प्रेरित किया। ये करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये बच्चे ही हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं। और अगर फाउंडेशन हमारा मजबूत होगा तो भविष्य का पट वृक्ष अडिग होगा और आयुर्वेद से प्रेरित होकर हम भारतवासी विश्वगुरु बने रहेंगे। मैं समझता हूं कि जब हम हिमालय की इस गोद में इस विश्वविद्यालय और आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान के माध्यम से कार्यरत हैं, मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता रहता हूं कि हिमालय है तो आयुर्वेद है। इन बच्चों को भी इनके इस सहयोग के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य में भी इस तरह से न केवल स्कूलों के अंतर्गत बल्कि अपने इर्द गिर्द अपने गांवों में वहां भी लोगों को प्रेरित करें, ताकि ये कार्यक्रम आगे से आगे एक चरक परंपरा को बच्चों तक सहजता और स्नेह के लाभ जो है वो पहुंचा सके और हमारा राष्ट्र मजबूत हो। आयुर्वेद है तो राष्ट्र मजबूत है। मेरी कामना है कि ऐसे प्रयास भविष्य में भी होते रहें। और NCISM का मैं फिर से धन्यवाद करता हूं अभिलाषी विश्वविद्यालय, अभिलाषी आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अनुसंधान की तरफ से, कि उन्होंने ऐसा नव विचार जो है, ऐसा अभिनव विचार पैदा किया जिससे कि जन जन तक आयुर्वेद जो है वो पहुंचा। आप सभी विद्यार्थियों को अभिलाषी महाविद्यालय, आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान के प्रिंसिपल, उनको और
हमारे मैनेजमेंट जिन्होंने हमें इसके लिए सहयोग किया, डॉक्टर आर के अभिलाषी और डॉक्टर ललित अभिलाषी जो मैनेजमेंट का पार्ट हैं, चांसलर और प्रो चांसलर हैं, उनका भी मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। भविष्य में भी हम और शक्ति के साथ अपने इस हिमालय के क्षेत्र को आयुर्वेद से अवगत कराएंगे और भारत की शक्ति बनाएंगे। धन्यवाद। Hello, myself Dr. Rahul. I am working as Vice Principal Abhilashi Ayurveda College, Jail Chowk, हिमाचल प्रदेश। तो हमारा यहाँ चरक फॉर चिल्ड्रन प्रोजेक्ट जो है, जो आपदास आयुर्वेद द्वारा बेंगलोर की जो एक फर्म कह सकते हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था ये। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे एक यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर विकास, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताया और इसमें हमने भी जैसे जैसे प्रोजेक्ट की वो मैंडेटरी गाइडलाइंस थी वैसे हमने प्रोसीड किया है। और जैसे 50 स्टूडेंट्स हमारे पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, तो जैसे पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म का इसमें एक प्रोटोकॉल था, उसी हिसाब से हमारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 3 स्कूल्स हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर लिए थे, जिसमें अष्टविध आहार विशेष आयतन के बारे में बच्चों को बताया गया है। और उसके बाद पहले बच्चों से फीडबैक लिया कि उनकी डेली रूटीन कैसी है, कैसा वो खान पान करते हैं। उसके बाद उसके अनुसार हमने जैसे बच्चों को गाइडलाइंस दी हैं बच्चों ने हमारे कि अष्टविध जो पथ्य है और डाइटरी डेली रूटीन कैसी होनी चाहिए, उस हिसाब से बच्चों से हमने बाद में भी फीडबैक ली। तो काफी बच्चों ने अच्छी फीडबैक दी है कि उनकी डाइट में कैसे चेंजेस आई हैं और कैसे उन्होंने अपनी रूटीन में चेंज किया है। तो I wish best of luck to my students for the fulfillment of this project and for promotion of Ayurveda to from childhood। ये बहुत ही अच्छा एक इन्होंने आपदास आयुर्वेद ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें कि बचपन से बच्चा अपनी आयुर्वेद को एक रूटीन की तरह फॉलो करेगा और बड़े होते होते उसके मन में एक आयुर्वेद के प्रति एक जागृत पैदा होगा, जिससे कि ये आगे चल के आयुर्वेद के प्रति बहुत ही अच्छा है। ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक टू दी स्टूडेंट्स। Myself, Dr. Vikas, Associate Professor, Samhita Department. As a coordinator, मुझे बहुत खुशी हुई है, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, सारी चीज़ें उन्होंने खुद की है, डिज़ाइन बनाया है, टॉपिक लिया है, स्कूल जाके मेहनत की है और खुशी हुई है मेरे को लेक्चर्स की वीडियो देख के। बहुत अच्छे इन्वॉल्व किया स्टूडेंट्स को और रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। मैंने सुना कि बच्चों के वेट गेन हुआ है 1 kg और बच्चों ने जंक फूड कम किया है। बच्चों को 20 दिन पहले दिए गए लेक्चर अभी भी याद हैं, क्या नहीं खाना है, खासकर जो बेसिक प्रिंसिपल हैं आयुर्वेदा के। हमारा टारगेट यही था कि हम सारी चीजें चेंज नहीं कर सकते, बट कुछ भी उनकी डाइट में अगर पॉजिटिव चेंज ले आते हैं, वो ढंग का खाना सीख लेते हैं, तो मुझे लगता है अपनी टीन एज में और आगे जाके वो अच्छा करेंगे। और मुझे लगता है बच्चों ने हमारे स्टूडेंट्स ने स्कूल में जाके बहुत बढ़िया किया और हमारी सभी टीम्स की क्रिएटिविटी बहुत बढ़िया थी। जैसे उन्होंने बुकलेट डिजाइन किया, लेक्चर डिजाइन किया, टॉपिक्स और एंड में कुछ इनाम वगैरह भी डिसाइड किए, तो बहुत है। और खुशी हुई मुझे, हमारे सभी स्टूडेंट ने एंथुसियाज्म दिखाया, उन्होंने बड़े दिल से सारी चीजें की। पहली बार कर रहे थे तो कई सारी चीजें हमें भी पता नहीं थी, बट सब कुछ को पार करते हुए इन्होंने भी बहुत कुछ सीखा और मुझे लग रहा है सब कुछ बहुत सही हुआ।